This is a multiplication part 1, which I have already written here, and multiplication is also done on the number line. So that I will also discuss, and also some example will be done based on the warm up. So I am just starting the example 1. Example 1. Write the multiplication fact, multiplication fact of the following. The following. One is done for you. Just say why I have taken the example 1 on the multiplication fact, but this is going to be used on the number line. So because of that, I am discussing this one. Just say A. 7 plus 7 plus 7 plus 7. Just say this is the first 7, this is the second, this is the third, and this is the fourth. ध्यान रखिएगा, इसका सम जो है आपको जो है 7 into 4 is equal to 28. ध्यान रखिए. अब यहां पर this 7 will be multiplicand, and this will be multiplier, and this is going to be product. I suggest each student should write all these things as far as the multiplication fact is considered, because this is going to be used in a number line multiplication. Other question, I am just giving you B. You have to fill up 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. C. 4 times 8 is equal to what? D. 9 of 4 is equal to what? E. 5 into 6 is equal to what? D. No, D. F. F. 3 times, भरिए यहाँ पर, fill up this gap, 27. G. 9 of this is equal to 54. H. 10 of this is equal to 100. Next example I will give you, and I will solve one problem. Rest problem you have to do.
This is very, very important, because unless you do not know the multiplication fact, you cannot do the correct multiplication on the number line. Example 2. Just say, example 2. Equal to multiply on number line by using multiplication fact. Multiplication fact of the following. अब देखिए, ए 3 into 5, और इसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ध्यान रख लीजिएगा। बी 6 into 3, अगेन फिलअप करना है। सी 5 into 4 फिलअप करना है। और डी इज इक्वल टू 3 into 5 इज इक्वल टू फिलअप करना है। आई एम गिविंग यू solution for A. What is that? 3 into 5 is equal to, ये आपको फिलअप करना है। अब जब देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता क्या है, और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होता है, अगर नहीं लिखेंगे तो इस सवाल को नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का मतलब होता है R 3 + 3 + 3 + 3 + 3 5 times, first, second, third, fourth and fifth। अब इसके बाद इसको फिलअप करना है, तो नंबर लाइन में क्या करेंगे? अब देखिए नंबर लाइन पहले ड्रा करना पड़ेगा। कैसे ड्रा करना पड़ेगा? ऐसे ड्रा करना पड़ेगा नंबर लाइन। स्टेप 1, ड्रॉ नंबर लाइन फ्रॉम 0 to which नंबर? अगर आप एडिशन जानते हैं, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। इफ यू नो द एडिशन, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। सो 15 का जो नियरेस्ट 10 है वो 10 है, और फास्ट सबसे बड़ा क्या है? 20 है। तो ड्रा द नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 20 एज, या लिखेगा। अब यहां पे लिखे नंबर लाइन। अब यहां से जो नंबर लाइन कैसे खींचा जाता है, जो आप 0 से स्टार्ट करिए, यहां पर 0 करिए, और 0 से लेकर के लड़कों से कहेंगे एग्जैक्टली जितना मन करे उतना ले जाए, 20 तक लिखें, जितना कॉपी में जगह वहां 20 लिखें। अब आफ्टर दिस लाइन, because they should know how to draw the line, the middle point will be 10,
अप्रॉक्सीमेटली हमने 10 किए हैं और ये बड़ी लाइन मैं खींच रहा हूं। अब देखिए, अब इसके बीच में क्या होगा 5, अब इसके बीच में क्या होगा 15। अब देखिए, इसको डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में, तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 लिख लीजिए 1 2 3 4 6 7 8 और 9। ये छोटा छोटा लाइन होना चाहिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अगर बीच का डिस्टेंस वेरी करता है तो पहले स्टूडेंट्स डोंट माइंड इट, अदरवाइज दे शुड यूज द स्केल सो दे कैन हैव द करेक्ट रीडिंग। बस इंपॉर्टेंट थिंग इज जीरो लाइन बड़ा होना चाहिए, 5th 10th 15th 20, बिकॉज यू नो 3 पर अगर ये लिखे नहीं है तो टेबल याद होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट यही होता है, you add 3 5 times, first second third fourth fifth, then you have to fill up this thing। अब देखिए उसके लिए क्या है, अब देखिए मैं स्टेप बता रहा हूं, ये स्टेप 1 ये है। अब स्टेप 2 आइए यहां पर, स्टेप 2 आई हैव ऑलरेडी सेड दैट आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द सेमी सर्किल। और ये सेमी सर्किल देखिए ऑल 3 आर द पॉजिटिव, सो above the line positive semicircle should be drawn with arrow means forward counting। तब देखिए 3 है, पहला 3 करेंगे तो 0 से अब यहां स्टार्ट करिए 1 2 3, तो 3 पे इसको ऐसे ले जाइए और यहां पर ले करके इसको सेमी सर्किल करिए और इसको बोलिए 3। अब देखिए, अब इसके बाद 3, तो देखिए 1 2 3 6 आ गया, फिर इसको ड्रा करिए सेमी सर्किल, क्योंकि फॉरवर्ड काउंटिंग है, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉरवर्ड काउंटिंग। फिर 3 7 8 9, यहां भी 3 करिए, यहां भी 3 करिए, फिर 1 2 3 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए, अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये क्या 5th, हमने 6 एक्स्ट्रा किया, उसको मिटा दीजिए। यही ब्यूटी है इसकी नंबर लाइन का, कि कोई भी गलत होगा आप यहां पर मिटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसको यहां जोड़ दीजिए, इसको एरो बना दीजिए। अब आप काउंट करेंगे तो 15 पर जा करके ये मिला हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहां पे लिख दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो रिजल्ट क्या हो गया 15। तो इसको यहां पर होगा O and T। That is how you have to solve the rest of the problem by number line। This is very very important। अब इसको मैं बता रहा हूं, हिंट में दे रहा हूं। देखिए यहां पर 5 into 3 होना चाहिए, मैं थोड़ा इसको करेक्ट कर देता हूं क्योंकि मैं बाई मिस्टेक यहां पर ये 5 into 3 होना चाहिए, और मैं हिंट दे रहा हूं, ये 5 into 3 है, और 5 into 3 में क्या होगा 5 + 5 + 5, ये ध्यान रख लीजिएगा जो है। और तो 5 5 and 5, तब जाके प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन होगा। सो आई विल आस्क द स्टूडेंट्स and I will request the teachers to give more problem on the number line। I am giving example 3। The student should remember the definition of each and everything, because in the division it is going to be very useful for all the students। Example 3,
Write multiplicand, multiplier, and product in the following table. Following mathematical table. One is done for you. So the student should learn more about that. Serial number, here it is the multiplication fact. Multiplication fact, here multiplicand, here multiplier, and here is the product. ये आपको होना चाहिए. अब देखिए 1 8 into 9, और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, सेकेंड टर्म क्या है 9 है, और 8 9 या 72 है. अब देखिए सेकेंड 9 into 8 फिलअप, थर्ड 8 into 7 fill up, fourth 5 into 10 fill up, 5 6 into 8 fill up, and 6 3 into 7. अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 72 हमने लिखा पूरा, ये 72 है, 2 है, 56 50 48 and 21. Better, this is the first term, this is the second term, this is the third term. So, अगर आप टेबल बनाना चाहें आप टेबल से बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसको आप सबको इसको ऊपर कर दीजिए. आप डिवाइड करना चाहते हैं इसे डिवाइड कर दीजिए. फिर ये रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू मेक सच टाइप ऑफ द टेबल. It will be beneficial for them. और ये ध्यान रखिए, हम लोग समय में कहीं ये सब नहीं था सिस्टम, फिर भी हम लोग अच्छे ढंग से पढ़े हैं. तो चाक एंड बोर्ड इज द बेस्ट वे टू डू द मैथमेटिक्स और ऑल सब्जेक्ट. Another example I am giving you. Example 4. Example 4. Write the multiplication fact, fact, या ध्यान देखिएगा.
ऑफ द following items and group। अब आपको मेंशन क्या करना है, ज्यादा सुनेगा जो है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप, ये भी लिखना है, और लिखना है नंबर ऑफ ग्रुप, और ये भी लिखना है एंड टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जितने सवाल दे रहे हैं इसमें ये लिखना है। अब जैसे अब ए सवाल दे रहा हूं, करूंगा नहीं, यहां पर ये है 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5, ट्रायंगल उनको बनाना आना चाहिए, प्लस 1 2 3 4 5। अब देखेंगे इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज 5, नंबर ऑफ ग्रुप इज 3, तो यहां पर इसे लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इक्वल टू, अब इसमें सभी चीज लिखना पड़ेगा। जो यहां देखिए कलर्ड हो गया, मैं चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट बी, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए सी, एक्स में बना रहा हूं, एक्स 1 2 3 प्लस, सर्किल नहीं है, एक्स है, 1 2 3 प्लस 1 2 3, एक सर्किल नहीं है, एक्स है, ठीक है। अब देखिए कन्वीनियंस के लिए मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब कि जिसकी साइड्स हो, इसका मतलब सर्किल, और इसका मतलब एक। अब हर में लिखना है कि कितने ग्रुप हैं, वन ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, और टोटल ऑब्जेक्ट्स कितना है, इसको फिलअप करना है। और लास्ट में मतलब डी में लिख रहा हूं, जिसको आप करिएगा मल्टीप्लाई, क्या है, ए है 12 इंटू 0, बी क्या, सॉरी इसको नंबर दूसरा मैं दे देता हूं, ये ए नहीं देता हूं, इसको मैं देता हूं ये फर्स्ट, ये सेकंड है, क्या है 5 इंटू 6 इज इक्वल टू,
और थर्ड है 9 इंटू 4। अब देख क्यों ऐसा लिखा हूं, इसको बोलते हैं, इस तरह से लिखने को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। इफ यू आर राइटिंग दिस वे, अब क्या है यहां पर देखिए, ये O है और T है। O है वंस 10, वंस सब वंस है, वंस। अब इसके प्रोडक्ट को लिखिए, और वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल मैं दे दे रहा हूं यहां पर, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं लाइन कर देता हूं, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। कैसे, अब देखिए फर्स्ट को कैसे लिखिएगा, फर्स्ट को 12 इंटू 0। सेकेंड को कैसे लिखिएगा, 5 इंटू 6। थर्ड को कैसे लिखिएगा, 9 इंटू 4। वो लिखना भूलिएगा मत जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और that is going to be end of my part 1 lecture. Thank you very much.